حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ ایک نئی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ خادم نے عرض کیا، اے میرے آقا، یہ کون سا ملک ہے؟ یہاں کے لوگ تو ہمیں اجنبی سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، یہ نمرود کے ملک سے آگے کا علاقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ کبھی کبھی اللہ کے منصوبے انسان کی سوچ سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ خادم نے عرض کیا، کیا ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہم ٹھہریں گے بھی اور بڑھیں گے بھی۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ہمارا راستہ ہوگا۔ دور سے ڈھول اور بانسری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگ قیمتی لباس پہنے ایک ہی سمجھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، بھائی، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آج شہر میں یہ شور شادمانی کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اجنبی، آج ہمارے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی سارہ خاتون نے اعلان کیا ہے کہ وہ 7 دن تک عام لوگوں میں سے کسی ایک کو اپنا شریک حیات پتی کے طور پر چنیں گی۔ ہر دن ایک محفل سجتی ہے، لیکن اب تک اس نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، شاید اللہ نے مجھے بھی کسی مقصد سے یہاں پہنچایا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چلنے کا ارادہ ہی کرتے ہیں کہ فضا میں ایک نورانی روشنی پھیل جاتی ہے۔ ان کا دل لرز اٹھتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، میرے نبی، تم اس محفل میں جاؤ، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیزی سے عرض کیا، اے میرے رب، تیرا حکم سر آنکھوں پر، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم پر چلنے والا۔ تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ کے بیچ ایک شاندار محل جگمگا رہا ہے، ستمبھوں پر سونا چڑھا ہے، خوشبو کی مہک چاروں طرف پھیلی ہے، لوگ قطاروں میں بیٹھے ہیں۔ تبھی منادی اعلان کرتا ہے، شہزادی سارہ خاتون تشریف لا رہی ہے۔ دروازے کھلتے ہیں اور نور کی ایک لہر حال میں داخل ہوتی ہے۔ بی بی سارہ کن شادی کے لباس میں جلوہ افروز ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہیروں اور موتیوں سے جڑا تاج ہے۔ وہ ایک ایک شخص کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ سب بڑے بڑے رئیس، مالدار اور وجیح مرد ہیں، مگر ان کے دل میں اطمینان نہیں اترتا۔ بی بی سارہ کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف دیکھتی ہے اور ان کی نظر ایک اجنبی شخص پر پڑتی ہے جو سب کے پیچھے ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے چہرے پر نور محمدی کی چمک ہے، ایسا نور کہ محفل کی روشنیاں مند پڑ جاتی ہیں۔ بی بی سارہ کا دل کانپ اٹھتا ہے، ان کے ہونٹوں پر بے قابو دعا آتی ہے، اے خدا، یہ چہرہ فرشتے جیسا کیوں لگتا ہے؟ پھر وہ خود بخود قدم بڑھاتی ہے، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ بی بی سارہ نے نرمی سے عرض کیا، اے اجنبی شخص، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کے چہرے سے عجب نور پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مسافر ہوں، اللہ کا بندہ، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے آزماتا ہے۔ بی بی سارہ نے عرض کیا، میں نے بہت سے چہرے دیکھے، مگر دل نے کسی کو قبول نہ کیا۔ آپ کو دیکھ کر دل کہتا ہے کہ یہی سچائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دل اگر سچائی کو پہچان لے تو وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ سارہ کے چہرے پر مسکان آتی ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تاج آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور اعلان کرتی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس اللہ کے بندے کو اپنا شوہر چنتی ہوں۔ محفل میں سناٹا چھا جاتا ہے، پھر اچانک تالیوں، شور اور مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھتی ہیں۔ محل کے پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہرے دار نے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے اپنے لیے شوہر چن لیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ کون سا شہزادہ ہے؟ پہرے دار نے عرض کیا، ایک اجنبی شخص، نہ سونا نہ جیور، مگر چہرہ ایسا کہ جیسے آسمانی نور اتر آیا ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر سکون، وقار اور روشنی ہے۔ پورا دربار انہیں دیکھ کر رہ جاتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے اجنبی شخص، تم کون ہو؟ تمہارے اندر عجیب سی روحانی کیفیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم ہوں، آجر کا بیٹا، لیکن میرا اصل نسب اس رب سے ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ میں اسی کا بندہ ہوں، اسی کا پیغام لانے والا۔ بادشاہ نے کہا، تم خدا کی بات کرتے ہو، ہمارے دیوتا بھی تو خدا ہے۔
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वो नहीं, तुम्हारे देवता बनाए गए हैं, मेरा रब बनाने वाला है। तुम्हारे देवता मिट्टी के हैं, मेरा रब नूर का है, वही सब कुछ करने वाला, सब कुछ देने वाला है। दरबार में खामोशी छा जाती है। बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज से मुतस्सिर हो जाता है। बादशाह ने कहा, अगर मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है तो जरूर इसमें आसमानी इशारा है। मैं इस निकाह की इजाजत देता हूं। खुशबुओं के फव्वारे चल पड़ते हैं। उल्लेमान निकाह पढ़ाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा के चेहरों पर सुकून है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इज्जत बख्शी। मैं वादा करता हूं कि अपनी बीवी के साथ तेरे दीन को कायम रखूंगा और तेरी बंदगी को दुनिया में फैलाऊंगा। बीबी सारा ने अर्ज किया, ए नबी ए खुदा, आपके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए हैं। मैं आपके दीन को सीखना चाहती हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीन सिर्फ इल्म नहीं, जिंदगी का रास्ता है। हम उस पर चलेंगे चाहे दुनिया छोड़नी पड़े। वक्त गुजरता है, महल में सुकून और ईमान का नूर छा जाता है। लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। एक शख्स ने पूछा, ए नबी ए खुदा, क्या तुम्हारे रब को हम देख सकते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नजर नहीं आता मगर हर चीज में दिखाई देता है। जब तुम इंसाफ करते हो, रहम करते हो, झूठ से बचते हो, तब तुम उसके करीब होते हो। एक रात जब सब सोए हुए थे, अचानक कमरे में नूर फैल गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैक या खलीलुल्लाह, तुम्हें हुक्म है कि इस मुल्क से हिजरत करो। अल्लाह तुम्हें एक नई सरजमीन की तरफ ले जाएगा, वहां तुम्हारे दीन की बुनियाद मजबूत होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तैयार हूं, जहां मेरा रब चाहे वही मेरा मस्कन है। सुबह का वक्त, फजा में हल्की ठंडक है। बीबी सारा ने अर्ज किया, क्या वाकई हम ये सब छोड़कर जा रहे हैं? ये महल, ये आसाइशें, सब कुछ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ सारा, ये सब फानी है। हमें उस रब के लिए निकलना है जिसने हमें मिलाया और मकसद दिया। बीबी सारा ने अर्ज किया, जब हुक्म रब का है तो मुझे कोई गिला नहीं। जहां आप जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। तुम उन औरतों में से होगी जिनका जिक्र कयामत तक इज्जत से किया जाएगा। काफिला तैयार है, ऊंटों पर सामान रखा जा रहा है। महल के दरवाजे पर बादशाह खड़ा है। बादशाह ने कहा, ए इब्राहिम, तुम आम इंसान नहीं हो। अगर तुम जा रहे हो तो मेरे लिए दुआ कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दुआ करता हूं कि तुम जुल्म छोड़ दो और अपने रब को पहचानो, वही सच्चा बादशाह है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल में उतर गए हैं। ए नबी ए खुदा, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ हो। काफिला रवाना हो जाता है। महल की दीवारों से अजान फजर की सदा गूंजती है और आसमान पर चांद ईमान की रोशनी की तरह चमक रहा है। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में ढलते गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा अपने हिजरत के सफर पर रवाना थे। उन्होंने दुनियावी महल छोड़ दिया मगर दिल में ईमान का खजाना था। जहां जहां यह जोड़ा ठहरता वहां रोशनी और बरकत फैल जाती। यह वह काफिला था जो अल्लाह के नाम पर निकला था। उसे कोई बादशाह रोक नहीं सकता था। रेत का मैदान, ठंडी हवा चल रही है। काफिला एक वादी में ठहरा हुआ है। बीबी सारा आग के करीब बैठी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऊंची चट्टान पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं। बीबी सारा ने नरमी से कहा, ऐ नबी ए खुदा, हम कई दिनों से स्वर में हैं। क्या यह सरजमीन हमारी मंजिल है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं सारा, यह तो रास्ता है। मंजिल वहां है जहां अल्लाह चाहे। हमें हुक्म है कि मिस्र की सरजमीन की तरफ बढ़े। बीबी सारा ने अर्ज किया, मैंने सुना है मिस्र का बादशाह जालिम है, क्या हमें वहां खतरा नहीं होगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे कोई बादशाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ही हाफिज है, वही कारसाज है। काफिला मिस्र की हदों में दाखिल होता है। यह वह वक्त था जब मिस्र का बादशाह अपनी ताकत और गुरूर में मग्न था। उसकी फौज हर अजनबी को काबू में ले लेती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर के करीब पहुंचे तो एक सिपाही ने उनका रास्ता रोक लिया।
सिपाही ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम मुसाफिर हैं, एक खुदा के बंदे, हम किसी नुकसान के इरादे से नहीं आए। सिपाही ने बीबी सारा को देखा। उनके चेहरे से नूर टपक रहा था, ऐसा हुस्न कि निगाहें झुक जाई। सिपाही फौरन दरबार की तरफ दौड़ा। सिपाही ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सलामत, एक अजनबी शख्स अपनी औरत के साथ आया है, लेकिन वह औरत, उसके चेहरे से नूर निकल रहा है। मैंने ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा। बादशाह के दिल में गुरूर और लालच जाग उठा। वह बोला, उस औरत को मेरे पास लाओ, मैं देखूं तो सही ये कौन है। महल जगमगा रहा था, कीमती कालीन, शानदार रोशनियां और तख्त पर बैठा घमंडी बादशाह। दरवाजा खुलता है, बीबी सारा अंदर दाखिल होती है। उनके पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से खड़े हैं। बादशाह उन्हें देखता है, उसकी जबान रुक जाती है। वह अपने दिल पर हाथ रखता है जैसे कुछ जल गया हो। बादशाह ने कहा, ऐ औरत, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है। तुम्हारे शौहर को मैं आजाद करता हूं, मगर तुम मेरे महल में रहोगी। बीबी सारा ने वकार से फरमाया, मैं अल्लाह के नबी की बीवी हूं और मैं अपने शौहर के बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकती। बादशाह ने गुरूर से कहा, मैं मिस्र का बादशाह हूं, मेरे हुक्म के आगे किसी औरत ने ना नहीं कहा, तुम कैसे इनकार करती हो? बीबी सारा ने फरमाया, मैं किसी बादशाह की नहीं, अपने रब की बंदी हूं, तू भी उसी के इख्तियार में है, तुझे बस खबर नहीं। बादशाह ने गुस्से से हाथ बढ़ाया कि बीबी सारा को छू ले, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जाम हो गया। वह चीख उठा, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ अकड़ गया। बादशाह चिल्लाया, ऐ औरत, कुछ करो, मुझे बचाओ, मुझे किसी जादू ने पकड़ लिया है। बीबी सारा ने फरमाया, नहीं, ये जादू नहीं, यह तेरे रब का अजाब है। अगर तू ईमान ले आए तो अल्लाह तुझे छोड़ देगा। बादशाह घबरा कर बोला, ऐ तेरे रब की बंदी, मुझ पर रहम कर, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बीबी सारा ने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच कहता है तो इस पर से पकड़ हटा दे। फौरन बादशाह का हाथ आजाद हो गया। वह हांफने लगा, मगर गुरूर फिर जाग उठा। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया और फिर वही हुआ, उसका जिस्म अकड़ गया, आंखें पत्थर आ गई। इस बार वह जमीन पर गिर पड़ा और रोकर बोला, मैं गवाही देता हूं, तेरा रब ही सच्चा खुदा है। बीबी सारा ने दुआ की, अल्लाह ने उसे तीसरी बार जिंदगी दी। अब वह सचमुच बदल चुका था। बादशाह उठा और कांपती आवाज में बोला, ऐ नबी की बीवी, तुम सच्ची हो, तुम्हारा रब अजीम है। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस भेजता हूं और अपनी बांदी हाजरा को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, वो तुम्हारी खिदमतगार होगी। बीबी सारा ने फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे, अगर तू दिल से सच बोलता है तो तेरा रब तुझे हिदायत देगा। बाहर खेमे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ में मशगूल थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी इज्जत और अमानत तेरे सुपुर्द कर दी है, तू ही हाफिज है, तू ही काफी है। इतने में खादिम दौड़ता हुआ आया, ऐ नबी, ए खुदा, आपकी बीवी सलामत वापस आ रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए। बीबी सारा उनके करीब आई, चेहरे पर सुकून, निगाह में नूर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, वही हमारा निगाहबान है। क्या हुआ वहां? बीबी सारा मुस्कुराकर बोली, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, जालिम बेबस हो गया, ईमान वाला बन गया, और यह लड़की हाजरा अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब बेहतरीन अता करने वाला है। काफिला फिर रवाना हुआ। यह सफर अब ईमान का जश्न बन चुका था। रास्ते में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक रुक कर नमाज पढ़ते। बीबी सारा और हाजरा दुआ में हाथ उठाती। बीबी सारा ने अर्ज किया, मैंने आज जाना कि औरत की इज्जत उसके ईमान में है, न कि महल में। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि ख्वाब में फरिश्ते नाजिल हुए। फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहिम, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह तुम्हें एक बेटे से नवाजेगा जो साबिर और सालेह होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बुढ़ापे में मुझे औलाद मिलेगी? मेरे रब की कुदरत बेशुमार है,